वी वर टॉकिंग डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक के कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड हमने देखे, क्लियर, और कुछ और कंपाउंड हम देख रहे थे. तो आई थिंक लास्ट कंपाउंड वी डिस्कस वाज कॉपर सल्फेट और जिंक ऑक्साइड. क्लियर, ZnO हमने डिस्कस किया था सबसे लास्ट में. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक. उसके बाद हम एफ ब्लॉक में स्विच करेंगे. तो नेक्स्ट कंपाउंड हेडिंग डालें, इट इज Hg2Cl2, मर्क्यूरस क्लोराइड. दिस इज मर्क्यूरस क्लोराइड. द फॉर्मूला इज Hg2Cl2. क्लियर, इसका फॉर्मूला होगा Hg2Cl2. याद रखना बेटा, इसका कॉमन नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दिस इज कॉमनली नोन एज कैलोमेल. क्लियर, व्हाट वी कॉल दिस कंपाउंड इज कैलोमेल. This is known as calomel. So first of all, we will discuss the method of preparation, how it is prepared. Very simple. आप क्या करेंगे, मर्क्यूरी क्लोराइड में HgCl2 के रिएक्शन Hg के साथ करा देंगे. HgCl2 is mercuric and this is mercury. They will combine to form Hg2Cl2. That is mercurous chloride. Clear? Next, write down properties. Next is properties of Hg2Cl2. First property, very important. Can you suggest Hg2Cl2 is an ionic compound or covalent? Anyone? Hg2Cl2 is an ionic compound or covalent compound? It is ionic compound. Clear? So there is a minute difference between Hg2Cl2 and HgCl2. Getting my point? This is mercuric and this is mercurous. याद रखना, mercurous जो होता है that is ionic nature and mercuric is covalent in nature. Then so it is ionic. Very very important. Ionic in nature. तो बेटा पहली बार इसको देख के लगेगा कि ये कोवेलेंट होता है, बट एक्चुअली दिस इज आयोनिक. और इसके आयंस की बात करें तो इट कंटेन Hg2 positive plus 2 Cl negative. These are the ions of mercurous chloride. Next, write down, it is amorphous. Second property, it is amorphous. It is testless. It is amorphous, testless, odorless white powder. Odorless white color powder. White powder. Now, इसकी reactions देखें. Let's suppose if you heat Hg2Cl2 and one more reaction with ammonium hydroxide. First is heating and next is ammonium hydroxide. Hg2Cl2 की ammonium hydroxide के साथ. This one. तो इसको हीट करेंगे तो बेटा जिससे ये बना था उसी में ब्रेक हो जाएगा. तो बताओ किससे मिलके ये बना था? HgCl2 और Hg से मिलके, तो इसी में वापस ब्रेक हो जाएगा. इट विल फॉर्म HgCl2 along Hg. क्लियर? नाउ दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Hg2Cl2 की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. ये नॉन मेडिकल एग्जाम AIEEE में पूछी जा चुकी है, आई थिंक 2004 और 5. देखिए क्या होता है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. Hg2Cl2 on reaction with ammonium hydroxide. You can say this is a test for mercury. यहाँ पे मर्क्यूरी को डिटेक्ट करने का एक टेस्ट होता है जिसमें कंपाउंड बनेगा दैट इज HgNH2Cl HgNH4Cl अलोंग वाटर. तो उस एग्जाम के अंदर ये पूछा था कि मर्क्यूरस क्लोराइड, isn't it? Mercurous chloride or calomel on reaction with ammonium hydroxide forms a black color compound. And what is that compound? That was this one. ये पूछा गया था. तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ
ब्लैक कलर का कंपाउंड बनेगा, दैट इज Hg, एक तरफ NH2 दूसरी तरफ Cl। नेक्स्ट कंपाउंड इज HgCl2, मर्क्यूरिक क्लोराइड। तो ये याद रखना बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन in which mercurous chloride on reaction with ammonium hydroxide forms the black color substance, that is HgNH2Cl। Next is mercuric chloride। देखा सभी ने? फाइन। नेक्स्ट राइट डाउन mercuric chloride। This is mercuric। बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? HgCl2। क्लियर? mercuric इज Hg+2 और क्लोराइड इज Cl, तो एक्सचेंज कराएंगे तो बनेगा HgCl2। एच इसका कोई कॉमन नेम नहीं है बेटा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कैलोमल इज Hg2Cl2, HgCl2 is not calomel। Next, method of preparation। Method of preparation number 1, direct reaction कराओ Hg और Cl2 की, you will get HgCl2। mercury chloride, direct reaction of mercury along chlorine, you will get mercury chloride। Second, HgO plus HCl, mercuric oxide की reaction with HCl। Now देखिए ध्यान से, Hg and Cl will form HgCl2, H और O क्या बना देंगे? Hc। क्लियर? तो द प्रोडक्ट विल बी HgCl2 एंड H2। और अभी हमने डिकम्पोज करके भी बनाया था, Hg2Cl2 को डिकम्पोज कर दो तो क्या क्या मिल जाएगा? HgCl2 विथ मर्क्यूरी। तो ये 3 मेथड है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वन राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ HgCl2। सबसे पहला इसका नेचर देखेंगे। एग्जैक्टली अभी हमने डिस्कस किया HgCl2 इज कोवेलेंट while Hg2Cl2 is ionic। तो HgCl2 की बात करें, इट इज कोवेलेंट इन नेचर। यदि इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में दोनों क्लोरीन मर्क्यूरी के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच है, लाइक HgCl3। नो लोन पेयर ऑन मर्क्यूरी। So can you tell me the shape of this structure? Linear shape। Clear? This is linear shape। Hybridization is Sp। Next, it is corrosive sublimate, मतलब ये corrosive nature का होता है। corrosive sublimate। Number 3, third property। थर्ड, water solubility। It is soluble in hot water। ऐसा क्यों? Anyone? Why it is not soluble in cold or normal water? Because it is covalent। वो आयोनिक था। आयोनिक तो टेंडेंसी होती है वाटर में स्प्लिट हो जाएंगे आयंस की फॉर्म में, बट इट इज कोवेलेंट। कोवेलेंट जनरली या तो सोल्यूबल नहीं होते हैं या फिर किसमें सोल्यूबल होंगे? हॉट वाटर। इट इज सोल्यूबल इन हॉट वाटर। सोल्यूबल इन हॉट वाटर। नाउ इसकी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जैसा Hg2Cl2 की एक रिएक्शन हमने इंपॉर्टेंट डिस्कस की थी, विच वन? अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या बनता है? ब्लैक कलर कंपाउंड। इसी तरह से यहाँ पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज HgCl2 ऑन रिएक्शन विद Ki। बहुत सिंपल है, बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट? आयोडाइड विल रिप्लेस दिस क्लोरीन टू फॉर्म HgI प्लस बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? KCl। इस 2 KCl, इस 2 Ki। तो
This is orange color PPT. HgI2 is the orange color PPT. अब यदि आप यहाँ पे और Ki डाल देते हो, if you add excess of Ki, then a very important compound will form, that is Nessler's reagent. क्लियर? यदि आप इसमें Ki और एक्सेस में डालो, ये जो HgI2 है, that will on further reaction with Ki will form K2HgI4. very important. ये कंपाउंड डायरेक्टली इस कंपाउंड का आपको नीट के एग्जाम में फॉर्मूला पूछा जा सकता है. क्लियर? HgI2 जो ऑरेंज पीपीटी बनी थी, उसमें यदि आप और बाहर से Ki डालते हो, पोटेशियम आयोडाइड, तो ये बन जाएगा K2HgI4. क्लियर? तो इससे कंफ्यूज नहीं होना बेटा. कभी कभार आपको ये ब्रैकेट भी नहीं मिल सकते हैं, सिंपली K2HgI4 होगा, बट ऑल्दो इट इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. नाउ नेशनल रिएजेंट एक्चुअली ये नहीं होता, इसका एल्केलाइन सॉल्यूशन होता है. गॉट इट? इसका एल्केलाइन सॉल्यूशन होता है, मींस इसको बेस में डालेंगे तब उसको क्या कहेंगे? नेशनल रिएजेंट. तो यही क्वेश्चन आपके एम्स में पूछा जा चुका है, और उसमें ऑप्शन में यही था, एक में ये था और दूसरे में इसका एल्केलाइन फॉर्म था. तो विच इज करेक्ट आंसर? एल्केलाइन सॉल्यूशन. क्लियर? मींस इसको जब आप बेस के साथ डालोगे KOH plus K2HgI4, this is Nessler reagent. So simply K2HgI4 is not Nessler. Its alkaline solution is Nessler. Next is AgNO3, last compound, silver nitrate. Write down, last compound is silver nitrate, AgNO3. इनमें बेटा जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ कि वो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो मेनली आप उस पर ज्यादा फोकस करते हैं रेदर देन इनकी प्रॉपर्टीज और मेथड. क्लियर? तो अगेन रिपीटिंग, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ HgCl2. नेक्स्ट राइट डाउन सिल्वर नाइट्रेट. सिल्वर नाइट्रेट की बात करें तो हाउ इट इज प्रिपेयर्ड देखें. लास्ट कंपाउंड ऑफ बी ब्लॉक सिल्वर नाइट्रेट. फॉर्मूला इज AgNO3. फर्स्ट राइट डाउन मेथड ऑफ प्रिपरेशन. डायरेक्टली आप सिल्वर की रिएक्शन कराओ HNO3 के साथ. ऑन डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ सिल्वर with HNO3, you will get AgNO3 plus NO plus H2. क्लियर? यहाँ पे आपको मिल जाएगा सिल्वर नाइट्रेट AgNO3. नाउ इसकी प्रॉपर्टीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक दो रिएक्शन आप याद रखें. राइट डाउन प्रॉपर्टीज के अंदर केमिकल रिएक्शन, इस हीटिंग रिएक्शन, इसको हीट करने पे ये किस तरह से डिकम्पोज होता है, दैट इज इम्पोर्टेंट. तो AgNO3 को दो तरह से आप डिकम्पोज कर सकते हैं. यदि आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो सिल्वर नाइट्रेट का सिल्वर नाइट्राइट बन जाएगा. क्लियर? तो AgNO3 टर्न्स AgNO2 along रिलीज ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन रिलीज करके AgNO2 में कन्वर्ट हो जाएगा. बट यदि आप इसको हाई टेम्परेचर पे, इफ यू रेड हॉट मतलब इसको लाल होने तक हीट करते हो, मतलब ज्यादा टेम्परेचर पे, तो प्रोडक्ट कुछ और होगा. दैट वुड बी AgNO2 O2. Note it down. So if you heat it at very high temperature, the last product will be AgNO2 and O2. Last reaction of AgNO3 देखें.
यदि AgNO3 की रिएक्शन आपने KCN से कराई, टेल मी द प्रोडक्ट क्या बनेगा? एनीवन? एग्जैक्टली, सिंपली डिस्प्लेसमेंट होगा. व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? AgCN plus KNO3. डन. नोट डाउन. AgCN plus KNO3 ion exchange करने. Now this AgCN is a white color PPT. Silver cyanide is a white color PPT. फर्दर बेटा आप इसमें और KCN डाल दीजिए. लेट्स सपोज आपने इसमें बाहर से और KCN डाल दिया तो फिर ये PPT डिसॉल्व हो जाएगी. एंड व्हाई दिस PPT विल डिसॉल्व? बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ एन आयन. जैसे यदि आप यहाँ पे और KCN डालते हो तो दिस टर्न्स इनटू AgCN2 minus complex, and this is not a PPT, this is a soluble complex. Got it? तो ये soluble क्यों हुआ? क्योंकि ये आयनिक फॉर्म एक बार कर लिया और पानी के अंदर जो पोलर होगा वो क्या होता है? Soluble. So because of this ionic form, it is soluble. Note it down. Next is F block element. So that is all about D block. F block is very simple. You have to learn two series and their important properties of F block. Next heading डालें F block element. F block के अंदर इतना कुछ खास नहीं है, बहुत लिमिटेड कंटेंट है. राइट डाउन F block element. तो बेटा सबसे पहले बताइए F block को हम कॉमनली क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन या फिर रेयर अर्थ मेटल. क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए. F block आर कॉमनली नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट or we can call them as rare earth metal. Clear? So can you tell me why they are known as inner transition? क्योंकि ये ट्रांजिशन के अंदर होता है. डी ब्लॉक सीरीज के अंदर आपको एफ ब्लॉक मिलेगी. फर्दर वाई वी कॉल देम एज रेयर अर्थ बिकॉज इनके जो कंपाउंड्स हैं ऑक्साइड और कोई भी कंपाउंड की बात करें तो ये अर्थ क्रस्ट में रेयरली एग्जिस्ट करते हैं. इवन ये खुद रेयरली एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि ये क्या होंगे? रेडियो एक्टिव. ठीक है? तो राइट डाउन एफ ब्लॉक की दो सीरीज होती है. यहाँ पे हम इनके मेजर डिफरेंसेस देखेंगे, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट. फर्स्ट राइट डाउन लेंथेनाइट सीरीज. लेंथेनाइट सीरीज जो होती है उसके एलिमेंट को लेंथेनॉइड कहते हैं. इसी तरह से एक्टिनाइट सीरीज के एलिमेंट को एक्टिनॉइड कहते हैं. तो लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड. जैसे हमने इसको स्टार्टिंग में ब्रीफली कवर किया था. अब कुछ और मेजर डिफरेंसेस देखेंगे. नाउ दोनों के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? 14 एलिमेंट ईच. Can you tell me the range of these 14 elements starting from what? Cerium 58 to lutetium 71. 58 से लगा के 71. ये सारे एलिमेंट लैंथेनॉइड कहलाएंगे. नेक्स्ट एक्टिनॉइड. थोरियम इज 90. थोरियम से लगा के लॉरेंशियम दैट इज 103. तो फ्रॉम थोरियम 90 to lawrencium 103. क्लियर? नेक्स्ट लेंथेनाइट सीरीज में कौन सा एफ सबसेल फिल होता है? 4F सबसेल, जो कि कौन से पीरियड के अंदर फिल होता है? 6 पीरियड में. याद है सभी को एफ सबसेल पेनल्टीमेट के अंदर वाला, एंटी पेनल्टीमेट में फिल होता है. 6 पीरियड में कौन सा एफ फिल होगा? 4F. इसी तरह से एक्टिनोड की बात करें तो दिस इज 5F सबसेल. और ये कौन से पीरियड में जाएगा? 7 पीरियड. इट इज
7 पीरियड। नेक्स्ट अब इनकी कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं, जहां तक हमने पहले भी डिस्कस किया था चैप्टर की स्टार्टिंग में। नाउ नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, बेटा याद रखना लेंथेनाइड का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है प्लस टी इज कॉमन ऑक्सीडेशन। क्लियर, सबसे कॉमन जो चार्ज होता है लेंथेनाइड का दैट इज प्लस टी, दैट इज मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। बट प्लस थ्री के अलावा भी ये कभी कभार प्लस टू भी शो करता है एंड प्लस फोर भी शो करता है समटाइम, बट मोस्टली प्लस थ्री इज कॉमन। यहाँ पे बात करें तो एज सच कोई फिक्स नहीं है, प्लस थ्री से लगा के प्लस फोर, प्लस फाइव, सिक्स, सिक्स तक जाएगा। तो इन दोनों सीरीज में बात करें तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन किस में अचीव हो रही है, लेंथेनाइड में या एक्टिनाइड में? एक्टिनाइड में, दैट इज प्लस सिक्स। प्लस सिक्स के दो एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड UF6, and one of the most important compound that is UO2 UF6 and UO2 F2, F2 की जगह Cl2 करना। इन दोनों में चार्ज बताओ यूरेनियम का, व्हाट इज द चार्ज ऑन यूरेनियम +6। क्लियर, नेक्स्ट राइट डाउन। लेंथेनाइड जो होते हैं बेटा, मोस्टली लेंथेनाइड फॉर्म कलरलेस आयन, कलरलेस आयन इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर जो लेंथेनाइड के आयन्स होते हैं वो क्या होते हैं, कलरलेस, बट एक्टिनोइड के आयन कलरफुल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कलरफुल आयन्स बनाते हैं, कलरफुल आयन। तो कलर याद रखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू कैन राइट यूरेनियम +3 जो है ये रेड कलर का होता है, यूरेनियम +5 ग्रीन कलर का। दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, नो नीड टू रिमेम्बर दिस कलर। यूरेनियम +4 एक्चुअली, no, all actinoids is also clear, but you can say commonly they form colorful line. Next, write down. They do not form oxy ion. They do not form oxy ion. Oxy ion का मतलब वो आयन होता है बेटा जिसके साथ क्या अटैच हो, ऑक्सीजन। गेटिंग माय पॉइंट, जिसके साथ ऑक्सीजन अटैच हो। तो ये इस तरह के आयन नहीं बनाते, बट एक्टिनोइड बनाते हैं। दे फॉर्म ऑक्सो आयन, दे फॉर्म ऑक्सो आयन। जैसे इसका एग्जांपल दैट इज UO2 2+, नायोबियम NbO2 2+, एक्सेट्रा। तो ये समझ में आया सभी को ऑक्सो आयन क्या होता है, जिस आयन में क्या प्रेजेंट होगा, उस एलिमेंट के अलावा ऑक्सीजन। ये ऑक्सो आयन कैटायन भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है। इन दिस केस पर्टिकुलरली बोथ दे आर फॉर्मिंग कैटायन। लास्ट डिफरेंस दैट इज all are नॉन रेडियो एक्टिव, मतलब ये रेडियो एक्टिव नहीं है, एक्सेप्ट प्रोमिथियम, एक्सेप्ट प्रोमिथियम PM। दिस इज इंपॉर्टेंट, प्रोमिथियम को छोड़ के बाकी सारे क्या है, नॉन रेडियो एक्टिव। सिर्फ रेडियो एक्टिव कौन है, प्रोमिथियम। बट इनके जो 14 के 14 एलिमेंट है सारे के सारे क्या हैं, रेडियो एक्टिव। तो ऑल आर रेडियो एक्टिव, ऑल आर रेडियो एक्टिव। इसको नोट करें, एंड इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट आस्क। ओके टॉम, नेक्स्ट कुछ बेसिक क्वेश्चन है उनको भी देखते हैं। तो इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन बेटा पूछे जा सकते हैं आपको नीट के अंदर भी और
बोर्ड के अंदर भी ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट है लैंथेनाइड का +3 चार्ज होता है। इसके अलावा कलरफुल आइन वाला भी ठीक ठाक इम्पोर्टेंट है। ऑक्सी आइन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट डिफरेंस। क्लियर? एनी डाउट अप टू दिस? चलिए इसके बाद लैंथेनॉइड की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करेंगे। राइट डाउन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ लैंथेनॉइड। लैंथेनॉइड में जो भी रिएक्शन होगी वो आप कॉमनली डील कर सकते हैं। नो नीड टू डील each and every lanthanoid separately. Clear? So we are going to deal some common reactions of lanthanoid. Important reactions of lanthanoid. देखिए सबसे पहले आपने बीच में रखा लैंथेनॉइड को और उसके बाद आप अलग अलग रिएजेंट से उसको रिएक्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल you are allowing this to react with oxygen O2. Next, you are allowing this to react with carbon. What will be the product? Next, किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? Next one, with water. Next is reaction with halogen, X negative halogen. And last is reaction with sulfide. Heating with sulfur. Heating with sulfur. F. देखें ध्यान से, Ln with oxygen बहुत सिंपल है। लैंथेनाइड यहाँ पे हम प्रोडक्ट बनाएंगे। देखो Ln with O2 क्या बनेगा? लैंथेनाइड पे चार्ज क्या होता है बेटा? +3 और ऑक्सीजन का कॉमन चार्ज क्या होता है? -2। क्लियर? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ चार्जेस को, क्या बन जाएगा? Ln2 O2। दिस इज द प्रोडक्ट। गॉट इट? वेरी सिंपल, बस +3 के करस्पॉन्डिंग आपको कंपाउंड बनाना। लैंथेनॉइड मेटल होते हैं और मेटल एसिड के साथ कौन सी गैस रिलीज करते हैं? हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट इसका बताओ प्रोडक्ट। लैंथेनाइड क्या है? +3 और वाटर पे कौन सा आइन होता है? OH नेगेटिव। तो LnOH होल 5। तो यहाँ पे बन जाएगा LnOH होल 5 और कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन। नेक्स्ट इसका प्रोडक्ट बताओ। वेरी गुड। Ln3+ और X- क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कौन सा हैलाइड बन जाएगा? LnX। सल्फर के साथ, सल्फर पे -2 चार्ज होता है। देखिए ध्यान से, लैंथेनाइड पे +3, सल्फर पे -2, क्या बनेगा? Ln2S6। सल्फर के साथ हीट करने पे ये बना देंगे सल्फाइड। नोट इट डाउन। नेक्स्ट कुछ और बेसिक क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। ओके, कार्बन देखिए। चलो, कार्बन और लैंथेनाइड ये बना था Ln3, ठीक है? दैट इज लैंथेनाइड कार्बाइड। दिस इज लैंथेनाइड कार्बाइड। नोट इट डाउन। नाउ एक और इम्पोर्टेंट ट्रेंड है लैंथेनाइड में, दैट इज बेसिक कैरेक्टर ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड। क्लियर? इसका क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में भी है। लेटेस्ट है, ये जो हाइड्रोक्साइड बन रही है LnOH, इनमें बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, दैट इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट नोट डाल के लिखें, राइट डाउन नोट। तो बेटा जैसे जैसे हम लैंथेनाइड के अंदर आगे बढ़ते हैं, जैसे बताओ सबसे पहला एलिमेंट क्या है? सीरियम।
सीरियम से लगा के कहाँ तक जाएंगे, ल्यूटीशियम तक। क्लियर? सीरियम इज हैविंग एटॉमिक नंबर हाउ मच, 58 एंड दिस इज 71। अब आपको पता होगा कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण साइज क्या होती रहती है, डिक्रीज फ्रॉम सीरियम टू व्हाट, ल्यूटीशियम। देन नाउ साइज डिक्रीज होती है, जैसे here we are talking about +3 cation, lanthanide, cerium +3 and lutetium +3. So here there is no exception. Listen carefully. यदि ये न्यूट्रल एटम है तो भी साइज डिक्रीज होगी, बट कहीं कहीं पे एक्सेप्शन आ जाएगा। जैसे बीच में एक एलिमेंट आएगा यूरोपियम, उसकी साइज बड़ी हो जाती है एक्सेप्शनली। क्लियर? बट +3 के अंदर कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता। +3 में ग्रेजुअली साइज क्या होती है, डिक्रीज। तो सबसे बड़ा लैंथेनोइड कौन सा हो जाएगा, सीरियम +3, और सबसे छोटा ल्यूटीशियम +3। नाउ यदि साइज डिक्रीज हो रही है ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या क्या होगा, साइज डिक्रीज होगी। तो बताओ चार्ज बाय साइज क्या होगा, चार्ज बाय साइज इंक्रीज होगा। याद रखना बेटा, चार्ज बाय साइज के इंक्रीज होने से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ते हैं। इसका मतलब यहाँ से इस तरफ जाएंगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो आयोनिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज। बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड, कोवेलेंट इंक्रीज एंड आयोनिक डिक्रीज। और आयोनिक कैरेक्टर कम होता है तो बेसिक नेचर भी कम होता है। तो ये चीजें आप याद रखें। On moving from left to right along lanthanide, size decreases, hence the charge by size increases. Due to charge by size, covalent character increases, ionic decreases, and basic character decreases. अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 1, order of basic strength, order of basic strength। यहाँ पे आपको बेटा लैंथेनाइड के बारे में आइडिया होना चाहिए। नोटेड। सबसे पहला है सीरियम CeOH होल साइड, सीरियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा है यूरोपियम हाइड्रोक्साइड AuOH होल साइड। थर्ड इज केटरबियम YbOH होल साइड। और लास्ट है बेटा ल्यूटीशियम LuOH होल साइड। बताइए विच इज मोस्ट बेसिक, मोस्ट वन, ल्यूटीशियम, सीरियम डिक्रीज हो रहा है। क्लियर? दिस इज लीस्ट बेसिक। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो सीरियम और ल्यूटीशियम तो पता है आपको, बाकी के बारे में क्या कहना है? तो इसका मतलब आज का होमवर्क है आपका कि आपको ये 14 लैंथेनाइड और 14 एक्टिनाइड ये लर्न करके आने नेक्स्ट क्लास। क्लियर? ये तो करना पड़ेगा, एटलीस्ट लैंथेनाइड कर लो, कुछ न्यूमोनिक्स बनाना। गेटिंग में पॉइंट? जैसे न्यूमोनिक्स तो ग्रुप 1 और 2 के बनते हैं, जहाँ पे याद होते हैं वहां पे न्यूमोनिक्स बने। क्लियर? बट आप ट्राई करना कुछ भी तरीके से। क्लियर? करके आओगे सभी? तो 14 elements of lanthanide and 14 elements of actinide, that is homework। उनके एटॉमिक नंबर, उनके सिंबल, उनके पूरे नाम। क्लियर? जैसे एन भी आ जाए, इसका नाम क्या होगा, EU का नाम क्या है, यूरोपियम। YB का नाम है जेटरबियम। क्लियर? दो है, एक है Y, ये जी ब्लॉक का है, और YB है F ब्लॉक का। ये है जेटरियम एंड दिस इज जेटरबियम। क्लियर? चलिए, तो अभी के लिए मैं एटॉमिक नंबर लिखता हूँ। इसका एटॉमिक नंबर है 58 और ल्यूटीशियम का Z है 71। इसके बाद यूरोपियम का होता है बेटा 70, 63 और YB का होता है Z = 70। क्लियर?
अभी के लिए कुछ कुछ आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट में से हैं। तो बताओ, बेसिक करेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होता है, तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? सीरियम। उसके बाद लेफ्ट टू राइट ही जा रहे हैं, दैट मीन्स फिर हो जाएगा यूरेपियम, देन ytterbium and lutetium, like that. Next, one more question. Write down, which of following, ये दो फेमस क्वेश्चन है, बताइए, ज्यादातर यही पूछे जाते हैं, इसलिए हम दोनों देख लेते हैं। विच अमॉन्ग फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक, इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा बेसिक है? तो पहला है LuOH होल साइज, दूसरा है LaOH होल साइज, थर्ड इज प्रोमिथियम PaOH होल साइज एंड ytterbium OH होल साइज। बताइए विच इज करेक्ट। अब देखो, लेंथेनाइट से पहले लेंथेनम आ रहा है, इजंट इट? तो सबसे बड़ा कौन होगा? लेंथेनम, इजंट इट? देखो, साइज जैसे जैसे डिक्रीज हो रही है, साइज से रिलेट कर लो, साइज और बेसिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। साइज जैसे जैसे कम हो रही है, वैसे वैसे क्या कम हो रहा है? बेसिक करेक्टर। तो लेंथेनम के बाद ही तो लेंथेनाइट आते हैं, इजंट इट? इसका मतलब इन सभी में से सबसे बड़ा कौन होगा? लेंथेनम। तो सबसे बड़ा होगा तो ऑब्वियसली इसका बेसिक करेक्टर भी क्या होगा? सबसे ज्यादा। इसका सबसे ज्यादा होगा। अब आप ऑर्डर भी कंपेयर कर सकते हो, जैसे ल्यूटीशियम, ल्यूटीशियम का एटॉमिक नंबर अभी हमने लिखा 71, प्रोमिथियम का लिख लो, प्रोमिथियम का होता बेटा 61, और येटरबियम का कितना था? 70। तो ऑर्डर भी कंपेयर कर सकते हैं, सबसे ज्यादा लेंथेनाइड होगा, लेंथेनम हाइड्रोक्साइड, इसके बाद क्या होगा? प्रोमिथियम, वेरी गुड, प्रोमिथियम हाइड्रोक्साइड, इसके बाद येटरबियम YbOH whole size, and least basic is LuOH whole size. Which one? ये वाला ज्यादा क्यों? ओके, लेंथेनम का जेड, लेंथेनम जस्ट पहले स्टार्ट होता है, इससे पिछला वाला लेंथेनम ही तो है, 57। क्लियर? जेड इज 57। इनको लेंथेनाइड की इसके नाम के पीछे रखा गया, लेंथेनम के बाद लेंथेनाइड, और एक्टिनियम के बाद एक्टिनाइड। तो बताओ एक्टिनियम का क्या होगा? जेड 89। क्लियर? 90 से एक्टिनाइड स्टार्ट होते हैं, उससे just पिछला। एनी डाउट अप टू दिस? बिल्कुल सिंपल है, बस जितना आपको एफ स्लोप में कराया जा रहा है, ये लाइन टू लाइन आपको याद होना चाहिए, इससे बाहर बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। एक तो क्वेश्चन साइज के कर लेते हैं, साइज से रिलेटेड, देखा सभी ने? Fine. बेटा साइज का एक ऑर्डर मैंने आपको बताया कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, याद है सभी को? व्हाट वाज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन? द साइज ऑफ 5D become equal to 4D and more than 3D। ये क्वेश्चन ट्राई करें आप, राइट डाउन, कंपेयर रेडियाई, compare radii। Question number 1 is lutetium, ytterbium, lutetium, ytterbium, europium plus 3, and this is lanthanum plus 3। Question number 1, इनमें आपको साइज कंपेयर करनी है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड इज सीरियम, सीरियम ND EU and HO।
इनके जेड में लिख रहा हूँ बेटा, जेड सीरियम का होता है 58, एनडी का होता है 60, 63, 67। और एक क्वेश्चन ये वाला एआईपीएमटी का है, को भी आप नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 इज क्वेश्चन फ्रॉम, ये मेडिकल एग्जाम का, ये एआईपीएमटी 2003। Y3 प्लस LU बहुत सिंपल है, LUEULA। साइज रिपीट करो। ये न्यूट्रल, हाँ बिल्कुल। साइज जो है बेटा, वो हमने क्या लिखा था, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, डिक्रीज होगा, वो +3 में एप्लीकेबल है। न्यूट्रल में एक एक्सेप्शन है, वो मैंने यहाँ पे कवर किया। सेकंड क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो ये चीज याद रखो बेटा दिमाग में, कि सीरियम से लगा के ल्यूटीशियम तक साइज जो है वो क्या होने वाला है, डिक्रीज। जनरली बात करें तो ये न्यूट्रल के लिए भी होगा और +3 के लिए भी होगा। न्यूट्रल में सिर्फ एक दो जगह एक्सेप्शन होता है, दैट वी विल सी नाउ। ल्यूटीशियम का जेड क्या था, 71। जेटरियम का चेक करके बताओ, 70। यूरोपियम का 63 और लेंथेनम का क्या था, 57। क्लियर। नाउ इन तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा, लेंथेनम होगा, क्योंकि लेंथेनाइट से पहले आ रहा है, और फिर लेंथेनाइट की साइज डिक्रीज होती रहेगी। तो इसका मतलब सबसे छोटा कौन होगा, आ रही बात समझ में। ये है बेटा 58, ये है 71। तो 58 से छोटा कौन होगा, 59। उससे छोटा 60, देन 61। इस तरह से डिक्रीज होकर सबसे छोटा कौन होगा, ल्यूटीशियम। ठीक है। अब 70 और 63 में से देखें तो ऑब्वियसली बड़ा कौन होगा, 63। तो दिस इज करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होना चाहिए, सीरियम से बड़ा, सीरियम सबसे बड़ा, फिर एनडी क्या होता है, नियोडाइमियम। एनडी इज व्हाट, नियोडाइमियम। ठीक है। सीरियम, नियोडाइमियम, यूरोपियम, होल्वियम। क्लियर। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, ये जो यूरोपियम होता है ये सबसे बड़ा होता है। क्लियर। न्यूट्रल के अंदर यूरोपियम सबसे आगे आ जाएगा और बाकी सब कुछ सेम। तो ऑर्डर बताओ क्या बन जाएगा, यूरोपियम, यूरोपियम के बाद नॉर्मल ऑर्डर, उसके बाद क्या आ जाएगा, सीरियम, सीरियम के बाद नियोडाइमियम, और लास्ट में सोल्फियम। अच्छा ये एपीएमसी वाला क्वेश्चन देखें। सबसे पहले आप एटॉमिक नंबर लिख दो, Na का 57, इसका जेड बताओ, EU का 63, ल्यूटीशियम का जेड, ल्यूटीशियम लास्ट होता है कितना, 71। नाउ ध्यान से समझना कि ये जो Y है ये सबसे छोटा होगा, क्योंकि लेंथेनाइट कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं, 6 से। और ये जो Y है ये कौन से पीरियड का है, दैट इज बिलोंगिंग टू विच पीरियड, 5th पीरियड। आया समझ में। इसका मतलब ये सारे तो 6 पीरियड के हैं, और फिर यही Y जो है ये किस पीरियड का है, 5th का। तो ये तो सबसे छोटा होगा। इसके बाद नॉर्मल, नॉर्मल ऑर्डर हमने देखा था, +3 का जो साइज है वो क्या होता रहता है, डिक्रीज। तो बताओ +3 में सबसे छोटा कौन होगा, ल्यूटीशियम +3। ठीक है। और सबसे बड़ा कौन होगा, लेंथेनाइट +3। एनी डाउट अप टू दिस, वेरी सिंपल। इसका और इसका डिफरेंस समझ में आया। ये 5th पीरियड का था, दिस इज नॉट लेंथेनाइट एक्चुअली। क्लियर। ये हम कैसे चेक कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम साइज क्या होती है, डिक्रीज। तो 5th पीरियड की साइज ऑब्वियसली कम होगी।
और इनमें हमने लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से देखी। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा आंसर, y+3 सबसे छोटा, सबसे बड़ा क्या होगा La, इसके बाद Lu और Eu प्लस। तो ये एक बार AIPMT दैट इज नीट इज फॉर्मली नोन एज AIPMT। क्लियर, नीट को AIPMT कहा जाता था। एनी डाउट अप टू दिस? तो ये जो क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किया लेंथेनाइड के 5 के साथ, तो ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए विदाउट एनी डाउट। क्लियर, जो एक्सेप्शन है वो सिर्फ यहीं पे है, यूरोपियम का साइज एक्सेप्शनली हाई होता है। एनी डाउट अप टू दिस? तो यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास से फिर से एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड। देन so that is very important chapter and very, you can say, vast chapter in terms of all the chapters। सभी को कंपेयर करें तो सबसे जो वास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे हाईएस्ट मार्जिन का जो चैप्टर है फ्रॉम जेई, नीट, बोर्ड, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट इज कार्बोनिल। तो वहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे विद एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर, so we have discussed which functional group right now. At haloalkane, we discussed alkyl halide. Other than that, we covered alcohol, phenol part and ether. So इसके बाद aldehyde, ketone, carboxylic acid, उनके derivatives और amines. These are left. Then, so thank you. Have a nice day.